Bismillahirrahmanirrahim. So, Amir BCom. Attendance is very important. That's why I'm attending. No, admitting guys. Otherwise, I won't admit guys who come late. And you should Fajr, leave Fajr. Anis Raja, you should open up the camera or I will remove you. Raja ji. Sir, wait a minute. Okay, no problem. Raja ji, she's Zindagi Chakin, she boy like Raja ji. Anyways, we have said Digital India program, and today we talk about many things. Okay, we talk about mainly that there are IT plus IT is equal to IT. We understood that. Okay, and then we said that there are three things which are very important for us. One is the digital infrastructure, and then the governance and the digital empowerment. This will happen only, and this is really empowering us in every sector. Then we have the infrastructure. We discussed this thing. We said governance, how it's gonna be, and digital empowerment of citizens. And now we got the 9 pillars of digital India. We got the 9 pillars. They are very important. So first is the broadband highway, because connectivity is everything. Internet is the soul of whole digital India program, right? So the first thing we have is a broadband. So broadband for all rural, broadband for all urban, and national information infrastructure. These things, as you could see, I told you yesterday that NOFN, NKN, SWAN, we want to implement them, okay? And we have to cover around this much area. The timeline is 2016, and I will send you this thing. You will understand it. But somebody tell me what is NOFN and what is the NKN. Yesterday we discussed National Optical Fiber Network, Okay. National Knowledge Network. Okay, universal access to mobile connectivity is the second. Okay, so there are uncovered villages and all. We want to cover them up to the 28. This was the timeline was up to 2018, and we have succeeded in having the mobile connectivity everywhere. Now you could see, even you go to the mountains, there is some mobile connectivity, and but there are still left out. So which we want to, we need to have the mobile connectivity everywhere. This is very important for us to have that. So that was the second pillar. The first pillar is the broadband, second is the mobile connectivity, and third thing is the public internet access program. So camera on. I've got a message. Camera on. What's happening? Sir. Yaar, why is somebody talking like that? Public internet access program. Who was this guy who's making disturbance here? This is the reason I say the camera should be open. This is the reason I said camera should be open, and you see now they are doing disturbances. Now, anyways, public internet access program and national rural internet mission. This is the third pillar. What is CSC? Can anyone tell me what is CSC? Hanji. What is? Yes, common service centers. We need to have the common service centers. What is a common service center? Can you tell me? And we call it as a cornerstone of national e-governance plan. जो आपका national NEGP जो आपके है national e-governance. Service provide करते हैं. Yes, they provide the services. Different place. So because like Aadhaar updation. Yeah, all the everywhere you need a connectivity. All the villages we have around 6 lakh census villages, and we have around 1 lakh CSCs. Okay, common service centers all over. They are connecting everybody. Okay, so what will common service sector act as? They act as the access point for delivery of government to citizen. What you call it, G2C, government to citizen. So जो आपका डिलीवरी है ना, आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन जो ई सर्विसेज है, वो हर एक बंदे के पास पहुंचे यूजिंग द ICT इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो जो G2C आपका है उसमें आपका CSCs ही काम करेंगी, ठीक है ना? You getting? अरसलान इम्तियाज अब आया. Let me connect, add it. And post offices to become multi-service centers. Basically CSCs हम post offices को ही empower करना चाहते हैं.
सो दैट कि आपके पोस्ट ऑफिस जो ऑलरेडी वहाँ पे है हर जगह, वो आपके CSCs बने, और वहाँ पे आपके जो ई गवर्नमेंट ई सर्विसेज आपकी है, गवर्नमेंट टू सिटीजन जो G2C आपकी सर्विसेज है, ठीक है, वो आपको मिले. खतीब फयाज हैज़ कम अप. सो फोर्थ पिलर इज ई गवर्नेंस. जब आपके पास देखिए, जब आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, जब आपके पास मोबाइल कनेक्टिविटी है, जब आपके पास अब नोड्स आ गए हैं, डिफरेंट जगहों पे नोड्स आपके हैं जहाँ से आप ई गवर्नेंस कर सकते हो, देन यू कैन डू. नाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन प्लेस, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स will pertain to the infrastructure, right? Because I told you we have three things: infrastructure, we have the e-governance, and then you will become the upgraded, okay, empowered. So the three things, जो पहली चीज़ें थी आपकी, वो सारी जो 3 पिलर्स आपने देखे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है ना. चाहे आपका ब्रॉडबैंड है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, या CSCs है जो आपने बनाए, ताकि वहाँ पे जाके लोग जो है ना ई गवर्नेंस अवेल कर सके, जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है आपको. सो यू हैव हियर ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी. व्हाट इज द ई गवर्नेंस? बिकॉज यू वांट टू रिफॉर्म यूर गवर्नेंस थ्रू द टेक्नोलॉजी, सिंपल एज इट इज, राइट. जो आपकी बिजनेस प्रोसेसिंग है, your इंजीनियरिंग है, वो IT से इम्प्रूव होगी. फॉर्म सिंप्लीफिकेशन, रिडक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करनी है या ट्रैक करना है आपको, आपको स्कूल सर्टिफिकेट्स हैं, वोटर ID कार्ड्स हैं. What is UIDAI? Can I tell what's the full form of UIDAI? That's your Aadhaar. This is the Unique Identification. Union Identification Authority of India. Very good. Unique Identification Authority of India. जिसको नहीं पता वो लिखें. UIDAI means Unique Identification Authority of India, जहाँ पे आपको वो नंबर दिया जाता है डिजिट्स का, जिसके हम आधार बोलते हैं. आधार नंबर है ना. जो आधार नंबर होता है वो क्या होता है? हाँ जी, Unique identification number. यस, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ना वो आपका. सो जो वही आधार होता है जो नंबर वहाँ पे दिया जाता है आपको, आधार नंबर जो ना आपका है वो चीज़. लेकिन वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो आपकी है इंडिया की, वो आपको ये करवाती है, ठीक है. ये ब्रांच है हमारी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो है इनको अथॉरिटी है कि वो आपको आधार नंबर दे दें, एंड वो आपका अपडेशन जो भी आपका करना है वो सारी चीज़ें वो करते हैं. देन देयर आर पेमेंट गेटवेज. आपका पेमेंट गेटवे भी होगा जो कि आपको जैसे आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करनी है, तो यू विल बी प्रोवाइडिंग सेफ एंड सिक्योर गेटवेज, जिससे आपकी पेमेंट विदाउट खतरे से, विदाउट एनी इश्यूज, विदाउट एनी सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं. मोबाइल प्लेटफॉर्म्स एंड EDI. व्हाट डू यू मीन EDI? EDI इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट इज EDI? एनीवन टेल मी EDI? इसके लिए तो वन नोट खोलना पड़ेगा ना. What is EDI? Anyone tell me what is EDI? It is electronic data interchange. What is it? Electronic data interchange. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल कंपनीज में. Write down this thing. You write down this thing. So EDI, electronic data interchange, is the इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन. सो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज किसकी करते हैं? इट्स इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन. ठीक है जी, बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट. ठीक हो गया. अब इससे क्या होगा? ओके, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज इज द इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन. ये जो इलेक्ट्रॉनिक आप इंटरचेंज क्या करना चाहते हो? बिजनेस इंफॉर्मेशन. ओके, यूजिंग ए स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट. You can say it is a process. It is a process, okay, which allows. It is a process which allows one company. It is a process which allows one company to send information to another company
to another company. ठीक है जी. It is a process which allows one company to send information to another company electronically. So you are sending it using the electronic mechanism, electronically, okay, without paper, without any paperwork, without any paperwork. ठीक है. And we call them as a trading partners, these guys. So what is happening here is, अभी कोई और आ गया, इसको मैं ऐड करता हूँ पहले, एक मिनट. इरफान. Everybody with webcams? Yes, nice. So होता क्या है बेसिकली कि कंपनी ए है, ये आपको कंपनी ए है, दिस इज कंपनी ए एंड दिस इज कंपनी बी, एंड दे आर ट्रेडिंग पार्टनर्स. दे आर व्हाट? ट्रेडिंग पार्टनर्स. ट्रेडिंग पार्टनर्स मीन्स कि आप एक कंपनी सेल कर रही है, दूसरी बाई कर रही है. ठीक है ना. बहुत सारी कंपनीज होती है ना, जैसे एक कंपनी है, उसने वो प्रोडक्ट बनाती है, दूसरी वो जो है वो आगे बेच के फिर वो आगे बेचती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके. तो इसमें मेन चीज़ जो आपका होता है वो ऑर्डर एंड इनवॉइस होता है. देखिए मैं एक एग्जांपल जो हम देंगे ईडीआई की, कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज कैसे होता है, कि आपके पास एक परचेज ऑर्डर बनता है, जो कंपनी खरीदेगी वो परचेज ऑर्डर उसके पास बनेगा, और इनवॉइसेस होते हैं हमारे पास, है ना, द रिसेप्ट्स एंड बिल्स एंड ऑल. तो जो ईडीआई आपका है उसमें जो आपका मेल प्रिपरेशन और हैंडलिंग जो भी सारा चीज़ है ना वो ख़त्म हो जाएगा. ओके. यानी कि वो सारा कंप्यूटर्स आपस में खुद करेंगे. फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कीजिए, हम एग्जांपल लेते हैं इसकी यहाँ पे, कि ये कंपनी ए है और से फॉर एग्जांपल ये विदाउट ईडीआई है, ये है विदाउट ईडीआई, और ये है विद ईडीआई. हमारे पास ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं कंपनी ए एंड बी. कंपनी ए एंड बी, दे आर ट्रेडिंग पार्टनर्स. ओके. अब क्या हुआ कि पहला चीज़ जो है विदाउट ईडीआई, आपको प्रोसेसिंग जो है, आपकी जो प्रोसेसिंग है उसमें एक हफ्ता लग जाएगा. ओके. इट विल टेक अ वीक्स टाइम. और यहाँ पे 5 आवर्स लगेंगे, यहाँ पे कुछ ही घंटे लगेंगे. 5 आवर्स क्यों लगेंगे, लेस देन एन आवर लगेगा मेरे ख्याल से, एक आधा घंटा लगेगा, से 40 to 60 मिनट्स मैक्सिमम आपको लगेंगे. आधा घंटा, तकरीबन आधा घंटे से पौन घंटा लगेगा आपको. यहाँ पे एक हफ्ता आपको ट्रांजैक्शंस में लगेगा तैयारी करने में. होता क्या है कि यहाँ पे जो बायर है वो डिसीजन करेगा कि मुझे बाइंग डिसीजन, ही विल हैव द बाइंग डिसीजन, राइट, दैट मुझे डिसीजन, इसने बाइंग डिसीजन किया कि मेरे को ये चीज़ें खरीदनी है. सो जब ये बाइंग डिसीजन करेगा तो ये परचेज ऑर्डर बनाएगा, बनाया इसने परचेज ऑर्डर, और ये फिर उस परचेज ऑर्डर को क्या करेगा, प्रिंट, उसने प्रिंट किया. ओके. उसके बाद ये इस प्रिंट को मेल करेगा, क्योंकि अब इसने बाइंग परचेज ऑर्डर किया, अब इसको देना है ना कंपनी को, तो ये क्या करेगा, उसको मेल, सूजन कोरियर थ्रो, वट एवर कैम थ्रो सूजन, ही विल सेंड इट थ्रू द मेल एंड ऑल. ओके. किसको भेजेगा, मेल करेगा टू सप्लायर, दैट इज कंपनी बी, जो इसकी ट्रेडिंग पार्टनर है. तो बायर ने, जो बायर है कंपनी ए जो है वो बायर है, सप्लायर इज कंपनी बी. अब बायर ने क्या किया, बाइंग डिसीजन उसने किया, उसके बाद उसने परचेज ऑर्डर बनाया, उसने उस परचेज ऑर्डर को प्रिंट किया ऑन द प्रिंटर. उसके बाद पहले कंप्यूटर में उसको बना, फिर प्रिंट किया, उसके बाद उसने इसको मेल किया, फिर लिफाफे में बंद किया, कोरियर किया. जो अब वो कोरियर गया किसके पास, सप्लायर के पास. डेफिनेटली इसमें टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि अब वो मेल जाएगा सप्लायर के पास, ये ना कोरियर ही सप्लायर्स के बाय मैसेज ही चीज़ ज़रूरत. अब जो सप्लायर है कंपनी बी जो है, सप्लायर जो है वो रिसीव करेगी. किसको रिसीव करेगी वो, आर यू विद मी, आर यू गाइज, सो तो नहीं गए, हाँ जी, वो किसको रिसीव करेगी, कंपनी बी से, कंपनी बी करेगी रिसीव. क्या करेगी रिसीव, सर वही क्या, वही कौन, परचेज ऑर्डर करेगी ना रिसीव. जो परचेज ऑर्डर मेल किया, जो परचेज ऑर्डर मेल किया कंपनी ए ने, है ना, अब बी उस मेल को रिसीव करेगी. ओके. उसके बाद रिसीव करने के बाद क्या करेगी कंपनी बी, उसको अपने जो है कंप्यूटर में है
अपनी ऑर्डर एंट्री जो उसकी चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम है या कुछ है, उसमें वो ऑर्डर करेगा उस एंट्री को, ठीक है। सो वो एंटर करेगा इस जो परचेजिंग ऑर्डर था इनटू द ऑर्डर एंट्री, ओके। ऑर्डर एंट्री सिस्टम जो उसका होगा कंप्यूटर सिस्टम होगा, पहले मैनुअल होता था, आजकल कंप्यूटर है, तो अपने ऑर्डर एंट्री सिस्टम में उसको वो एंटर करेगा, ओके। उसके बाद क्या करेगी कंपनी बी, वो कॉल करेगी किसको, सप्लायर को, ठीक है, कि मतलब अब नहीं, ये कंपनी ए पहले कॉल करेगी किसको, कंपनी ए आप करेगी कॉल इसको कि क्या आपको पहुंच गया, सप्लायर को कॉल करेगी क्या आपको पहुंच गया उसका परचेज ऑर्डर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, ओके। तो उसके बाद जो सप्लायर है वो उसको वापस मेल करेगा, हाँ जी पहुंच गया, एक्नॉलेज करेगा, सो इट विल एक्नॉलेज। सो इस ट्रांजैक्शन जो अगर आप देखोगे ओवरऑल कि आपके जैसे कंपनी ए है, अगर ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे, ओवरऑल सिनेरियो ये है कि कंपनी ए का जो सिस्टम है कंप्यूटर है उसने परचेज ऑर्डर बनाया, ठीक है, और जो कंपनी बी का है उसने उस परचेज ऑर्डर को प्रोसेस किया या रिसीव किया, सिर्फ इतना ही था। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में कि इसने पहले वो प्रिंट किया, ठीक है, प्रिंट करने के बाद मेल किया, मेल करने के बाद वो गया इधर, उसके बाद ये कॉल कर रहा है उसको कि भाई मिला या नहीं मिला, और ये वापस इसको एक्नॉलेज कर रहा है हाँ जी मिल गया या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो नहीं बोलेगा कि एक्नॉलेज करेगा ना जी हमारे पास नहीं पहुंचा, वो लॉस्ट हो गया है, या अगर पहुंचा है तो एक्नॉलेज करेगा हाँ पहुंच गया। तो ये जो कम्युनिकेशन है बिटवीन कंपनी ए एंड कंपनी बी, इट इज टेकिंग 1 वीक टाइम ऑफ ऑल दिस नुइसेंस। लेकिन उसके बरक्स अगर हमारे पास ईडीआई होगा, व्हाट इज ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल होगी। क्या होगा, यहाँ पर भी जो बायर है वो अपना बनाएगा, वो बायर जो बायर है वो ए कंपनी ए है, वो भी क्या बनाएगी अपनी, वो बाइंग डिसीजन करेगी, वो बाइंग डिसीजन जो वहाँ से बाइंग डिसीजन किया ये भी बाइंग डिसीजन करेगी अपना, और ये परचेज ऑर्डर बनाएगी, ये बनाएगी परचेज ऑर्डर, बनाया इसने परचेज ऑर्डर, लेकिन ये इसको यहाँ पे प्रिंट कर रही थी, परचेज ऑर्डर जो बना उसको प्रिंट हो रहा था ना, यहाँ पे जो परचेज ऑर्डर था वो क्या हो रहा था, प्रिंट। ये प्रिंट नहीं करेगा परचेज ऑर्डर, इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पास ईडीआई सॉफ्टवेयर होगा, इसके पास क्या होगा, ईडीआई सॉफ्टवेयर। तो ये परचेज ऑर्डर अपने ईडीआई सॉफ्टवेयर को देगा, तो वो उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन। तो जो आपका परचेज ऑर्डर है उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो होगा वो आपका ईडीआई सॉफ्टवेयर बनाएगा, ठीक है। आपको इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको दूसरी बात इसको मेल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईडीआई जो है उसको लिंक होगा आपका ट्रेडिंग पार्टनर, जो आपका ट्रेडिंग पार्टनर है वो आपके ईडीआई के साथ लिंक होगा। तो यानी कि जो ये परचेज ऑर्डर है इट विल गो ऑटोमेटिकली टू सप्लायर। समझ आ रही है बात समझ आ रही है? यानी कि आपने जो परचेज ऑर्डर बनाया पहले उसको प्रिंट किया, उसके बाद मेल किया, फिर सप्लायर को भेजा, यहाँ पे वो झंझट ही नहीं है। आपने इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बनेगा ईडीआई सॉफ्टवेयर, उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बनेगा परचेज ऑर्डर का, और वो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेडिंग पार्टनर जो आपका है, जो आपका ट्रेडिंग पार्टनर है वो उसके साथ लिंक होगा, और ऑटोमेटिकली इट विल बी सेंड टू द सप्लायर, ठीक है। बात समझ आई? अब जो सप्लायर है वो भी आपके ट्रेडिंग जो आपका ईडीआई सॉफ्टवेयर है उसके साथ लिंक है, वो ऑटोमेटिकली परचेज ऑर्डर रिसीव करेगा और एक्नॉलेज यानी कि रिसेप्ट भी भेजेगा। इट विल रिसीव एंड एक्नॉलेज कि भाई पहुंच गया, ऑटोमेटिकली यानी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो आपका रिसेप्ट है वो आपके पास चला जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ जो आपका रिसेप्ट है वो खुद ही आ जाएगा आपके पास, यानी कि आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे परचेज
ऑर्डर बनाना है, EDI सॉफ्टवेयर वो लेगा, EDI सॉफ्टवेयर विल टेक इट, इट विल सेंड टू द बायर, कंपनी बी, द सेलर, सॉरी कंपनी बी इज़ द सेलर, वो कंपनी बी को ऑटोमेटिकली भेजेगी, और कंपनी बी का जो EDI सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली आपको रिसेप्ट भेजेगा आपके EDI सॉफ्टवेयर को। तो कुल मिला के जो आपका सिस्टम ए का सिस्टम है और बायर का जो सिस्टम है, कंपनी ए जो बायर थी उसका जो सिस्टम है, कंपनी बी जो है उसका जो सिस्टम है, वो आपस में खुद ही ट्रांजैक्शंस एक्नॉलेज रिसेप्ट कर लेंगे, और आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इट मे टेक हाफ एन आवर for all of this, right? So it will dramatically increase your performance. ठीक है, जो झंझट आपका पेपर वर्क का था, मेनली इसमें जो बिल्स आपकी थी, इनवाइसेस जो आपकी थी, मैंने आपको कहा जो परचेज ऑर्डर एंड इनवाइसेस, इसमें ही 1 हफ्ता लग जाता है आपको जो बिजनेस करने में, तो वो सारा झंझट विद इन हाफ एन आवर ऑटोमेटिकली हो गया। सो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इट लुक्स ये क्या है, बट यू नो अगर आप इन लॉन्ग रन देखोगे कि कितना टाइम खाता था सिर्फ ये ऑर्डर करने में कि मेरे को ये भाई ये चीज़ चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई यूजिंग द EDI। ठीक है जी, इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू गाइज? इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. No, sir, आपका खाली Screen is not visible. What is visible? Visible है। सर आपका वीडियो आ रहा है आपकी स्क्रीन में। आपका वीडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है। तो आप बोल क्यों नहीं रहे हो स्क्रीन इज नॉट विजिबल? तो जो मैं लिख रहा हूँ इतनी देर से आप बोल ही नहीं रहे हो फिर। तो मैं सोच रहा था आप क्या लिख रहे हो, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे लगा लेकिन मेरी प्रॉब्लम है। अरे यार इतनी देर से मैं लिख रहा था, धंधरोज में लिखा तू क्या स्थिर बिछा मैं लिख रहा था सर ना हम कि- आपको देख रहे थे। सर हम आपको देख रहे थे। अरे भाई मैं तो इतनी देर से लिख रहा था आप लोगों के लिए। सो नाउ लेट मी रिकैप अ बिट लिटिल बिट। ये आपको इसमें से कुछ नहीं दिखा, फिर स्क्रीन विजिबल ही नहीं था। नो सर। अरे यार कमाल करते हो आप लोग। चलो लेट्स रिकैप अ लिटिल बिट। मैंने कहा जो EDI आपका है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, उसमें बिजनेस इंफॉर्मेशन जो आप है यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट आप करते हो। क्या करते हो? मैंने कहा ये एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस विच अलाउज वन कंपनी टू सेंड इंफॉर्मेशन टू अनदर कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। समझ ही नहीं आ रहा क्या है सर। मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप छोटे बच्चों के नर्सरी में पढ़ते हो क्या? आई एम ऑल्सो रीडिंग दिस थिंग। So I'm saying it is a process which allows one company to send information to another company electronically without any paperwork. इसमें क्या ये क्या ग्रीक बोल रहा हूँ मैं क्या? So that means company A has company B is a trading partner of company A, right? अब इसमें जो परचेज ऑर्डर बनता है और इनवाइसेस जो बनती हैं उसमें मैंने कहा कि भाई साहब ये जो है ये विदाउट EDI है और ये विद EDI है। अगर हम विदाउट EDI करेंगे, जो A प्रोसेस है, A जो है उसका ट्रेडिंग पार्टनर B है, कंपनी B है, इस प्रोसेस में 1 हफ्ता लग जाता है और यहाँ पे आपको 40 to 60 मिनट्स या हाफ एन आवर लग जाएगा, इवन लेस देन दैट। सो बायर यहाँ पे क्या करेगा? जो बायर होगा कंपनी A, वो पहले बाइंग डिसीजन करेगी। इट विल डू द बाइंग डिसीजन। ठीक है, इसने बाइंग डिसीजन की, ठीक है, इट डज द बाइंग डिसीजन कि भाई साहब मेरे को बाई करना है। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद बाइंग डिसीजन के बाद वो एक परचेज ऑर्डर बनाएगी कि मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए, सिंपल। उसके बाद वो उनका प्रिंट निकालेगी अपने कंप्यूटर से कि मैंने मुझे क्या क्या खरीदना है। उसके बाद वो उसको मेल करेगी, किसको मेल करेगी? टू द सप्लायर, है ना? इट विल मेल टू द सप्लायर सप्लायर को सर। और जो B है वो फिर उसको वो मेल मिलेगा, रिसीव करेगा, वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में ऑर्डर को एंट्री करेगा। ऑर्डर एंट्री सिस्टम जो उसका होगा उसमें वो ऑर्डर अपना डालेगा कि फलानी कंपनी मुझे ये ऑर्डर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो कंपनी A है वो कॉल करेगी सप्लायर, क्योंकि भाई साहब आपको मिला मेरा परचेजिंग ऑर्डर के नहीं मिला, PO परचेजिंग ऑर्डर मिला कि नहीं मिला। तो सप्लायर वापस एक्नॉलेज करेगी हाँ जी मिल गया या लॉस्ट हो गया। तो कुल मिला के जो है
कंपनी ए ने परचेजिंग ऑर्डर बनाया, उसके बाद उसने क्या, आप कॉन्सेंट्रेट करें, मेरा वीडियो भी इसमें रिकॉर्डेड है तो आप बाद में देख सकते हो, इसको कॉपी बना सकते हो आराम से। पहले कॉन्सेंट्रेट करो मैं क्या बोल रहा हूँ, लुक एट द स्क्रीन। जो परचेजिंग ऑर्डर है, ओके, उसको वो प्रिंट करेगी, उसको वो मेल करेगी वो कंपनी, उसके बाद वो कहाँ जाएगी, मेल करके वो फिर सेंड करेगी उसको यहाँ पे, इसको बी को, और बी कंपनी बी जो होगी वो उसको रिसीव करेगी और फिर एक्नॉलेज करेगी कि हाँ जी मिल गया। लेकिन ये कॉल करेगी पहले, सी मीन्स कॉल, यानी कि इसने प्रिंट किया, उसने मेल किया, उसके बाद वो कुछ दिन वेट करेगी कि मेल करने के बाद कुछ दिन वेट करेंगे, उसके बाद कॉल करेगी कंपनी बी को, भाई साहब मैंने आपको भेजे थे ये चीज़ें, क्या वो आपने पहुँची? कॉल करके वो अगर पहुँची हैं तो बी बोलेगा हाँ पहुँची, अगर अभी नहीं पहुँची बोलेगा मे बी इट्स ऑन द वे, और फिर से कॉल करना पड़ेगा, आप पहुँच गया जी, ये बोलेगा हाँ जी पहुँच गया, तो उसके बाद वो उसको एक्नॉलेज करेगा हाँ पहुँच गया। तो इस सूरत में एक हफ्ता या एक हफ्ते से ज़्यादा भी लग सकता It है। will take 1 week. इट मे टेक मोर देन 1 वीक समटाइम्स। अगर शीन पे, अगर कशीरिश चीज़ ओस, वत गई बंद, फंसो मेल मज, इट कैन टेक 1 month। वन ऑर्डर कुनी, वन कर सिर्फ यूत मैच ये जरूरत, युतु योत कर। लेकिन उसके बरक्स अगर आपका ईडीआई सिस्टम है, इसने ये सारा चीज़ जो है ना चुटकियों में कर दिया। जो ईडीआई सिस्टम है उसमें भी कंपनी ए जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर है बी की, ठीक, उसने क्या किया काम, उसने डिसीजन किया, बाइंग डिसीजन किया, बाइंग डिसीजन के बाद उसने बनाया परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर जब उसने बनाया वो अपने ईडीआई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगी, उसके पास एक ईडीआई सॉफ्टवेयर होगा, ईडीआई सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बनाएगी, जो परचेज ऑर्डर है उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बनेगा, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बन गया। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली लिंक होगा टू द ट्रेडिंग पार्टनर। ये जो ईडीआई सॉफ्टवेयर है आपका कंपनी ए का, वो ऑटोमेटिकली लिंक होगा टू द किसके साथ, जो ट्रेडिंग पार्टनर का ईडीआई सॉफ्टवेयर है। यानी कि ये जो ईडीआई सॉफ्टवेयर आपका है, जो आपने परचेज ऑर्डर बनाया यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली सेंड करेगा टू द सप्लायर। आपको मेल करने की ज़रूरत, आपने कंप्यूटर पे यहाँ पे टक 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 ऑर्डर बनाया ईडीआई सॉफ्टवेयर में, उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बनाई, आपने फिर कहा सेंड, वो खुद जाएगा कंपनी को, ऑटोमेटिकली विल सेंड टू द सप्लायर। यानी कि आपको मेल करने, फिजिकल मेल करने की, कोरियर करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आपका सप्लायर है उसको ऑटोमेटिकली, उसका ईडीआई सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिसीव करेगा उसको, और वो ऑटोमेटिकली एक्नॉलेज भी करेगा कंपनी ए के सिस्टम को कि भाई साहब मुझे मिल गया, है ना, बस में आई। यानी कि आपने यहाँ से किया खटक, भाई साहब सेंड कंपनी बी को, मुझे ये ऑर्डर चाहिए। कंपनी बी का ईडीआई सॉफ्टवेयर है, उसमें जैसे मैसेज आती है ना आपको व्हाट्सएप पे, ऐसे ही उसको मैसेज आएगी कि ऑर्डर आ गया, वो उसके सिस्टम में आ जाएगा, और वो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक्नॉलेज उसको। सो इसमें क्या टाइम लगेगा, कुछ नहीं टाइम लगेगा। लेकिन सिस्टम ए जो आपका है, जो आपका सिस्टम ए है, वो परचेज ऑर्डर बनाएगा, ईडीआई सॉफ्टवेयर को देगा, ईडीआई सॉफ्टवेयर खुद भेजेगा बायर को, सेलर को, सॉरी सेलर को, और सेलर खुद एक्नॉलेज करेगा इसके सिस्टम को। सो इट मे नॉट टेक इवन हाफ एन आवर, राइट। इसमें क्या टाइम लगेगा, कुछ नहीं टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ टाइम लगेगा बाइंग, जो आपको परचेज ऑर्डर बनाना है सिर्फ उसी में टाइम लगेगा बस, और तो कुछ टाइम लगेगा ही नहीं। डजंट मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग? हाँ जी, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस वॉज योर ईडीआई, वी जस्ट स्टक ऑन दिस ईडीआई। और ये ई गवर्नेंस तो इसी से आएंगी ना, जब आपके पास ये चीज़ें होंगी। बात समझ आई? जब आपके पास ये चीज़ें होंगी, जैसे आजकल हमारे पास आता है, ये हम कल पढ़ेंगे अब बाकी चीज़ें इसमें। जैसे हमारे पास होता है कि हमारे पास है माइक्रो एटीएम। अब गवर्नमेंट जो है ना माइक्रो एटीएम रखने जा रही है हर दुकानदार के पास, जो ट्रेडिंग पार्टनर्स के पास होंगे। जो भी कोई भी दुकानदार है, किराना दुकान है, उसके पास एक छोटा सा बॉक्स होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स एक है, इसका बॉक्स जितना होगा छोटा सा एटीएम। आपका मोबाइल फ़ोन लाना है, आपको पैसे निकालने हैं या भरने हैं, आप बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, उधर उसके पास पैसे भरो, युस तम सुन गलतान आस ना तथ मज गसन तम पोसे, एंड फ्रॉम हिज मनी ही विल गिव इट टू द बैंक, एंड इन द बैंक जो है फिर वहाँ पे वो खुद जाएगा पैसे। और आपको पैसे अगर निकालने हैं, यू कैन गो टू द माइक्रो एटीएम एंड डू इट। सो यानी कि आपको, हम चाहते हैं कि जो ये आईटी सिस्टम है, ये जो आपका डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, इसमें आपको एम्पावरमेंट मिले, आपका टाइम बचे, आपके हर एक चीज़ें आपको पूरा समझ आएगा। हम कल इस पे और काम करेंगे
Right now my class is over. So hopefully you got these things. Copy banao and go to the other classes. Baki class dete ho? Yes, sir. How is the other class going? So hope your online classes are going good, right? So Yes. anyways, Good, sir. Yes, sir. so how is my class going? Are you getting properly the things? Yes, sir. Okay, ji, Allah Hafiz. Yes, sir. Okay, then thank you. Thanks for having me in your class and taking my class. Jazakallah khair. Thank and you, sir. Assalamu alaikum.